मिशन जीरो एंड इलेक्ट्रिकल एंड फायर एक्ट, उस बुक के ऊपर काम करते हुए आपके पास बैक थॉट क्या था? You can look at the figures for last 5 years. 4,30,000 deaths last year जी, and 3% जो आपने आरसीडी टर्म बोली, रेगुलेशन 44 बोलता है कि ये लगनी है और यूटिलिटी मीटर तब तक आपको नहीं देती जब तक आरसीडी ना लगाओ। एक सेफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ऑल द इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स। 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसके। रूटिंग ऑफ योर वायर, फायर में मैक्सिमम डेथ जो होती है Smoke की वजह से स्मोकिंग होती की, है। सफोकेशन की वजह से होती है। घुट के मर जाने से। हाँ, तो वो स्मोक क्रिएट नहीं करती। किस तरह से टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी को एनहांस कर रही है? पहले जिस प्रोटेक्शन सिस्टम को ऑपरेट करने में, डिस्कनेक्ट करने में मुझे कुछ समय लगता था, नाउ वी हैव रिड्यूस्ड दैट टाइम। दैट इज द यूज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। And हमें जागना है। आज की डेट में एलेक्सा एक एग्जाम्पल है, लेकिन एआई जो है वो इनबिल्ट गैजेट्स में आने लग गया है, करना खुद है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मेरा नाम है अर्पित अरोड़ा और आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर राजेश अरोड़ा जी, जो 22 साल से दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में काम कर रहे हैं और अब सीनियर मैनेजर टेक्निकल डिपार्टमेंट का ओहदा संभाले हुए हैं। सर ने बीटेक, एमटेक और पीएचडी इन अर्थिंग कर रखी है और आज इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी कोच के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सर, वेलकम टू माय शो एंड प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ इन योर वर्ड्स। First of all, thank you Arpit and Media Darshan. I always start my all conversation with thanks to Almighty and my family, because for me they are the superior than any other thing in my life. I am Rajesh Arora, as you already introduced myself. I started my career in 1993 after passing my diploma. After that I did BTech. Then I did ME from same college of Delhi College of Engineering. Then I did my MBA in HR and MBA in Finance. ओके, Apart from that, I did one course from IGNOU ACPDM. And finally, that was my dream to do PhD. And finally, I could do PhD from UPS on designing of earthing system. That is the most important factor for electrical safety wherever you go. यस सर। सो जैसे आपने अर्थिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपने पीएचडी स्कॉलर बने, आप पीएचडी आपने कंप्लीट करी, तो मेरा सबसे पहला सवाल कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतना जानना, ये आपका एक पैशन था या आपको इसी में अपना फ्यूचर देखना था? In 1993, after passing diploma, I was a very normal engineer like others. ओके, And I didn't have any more curiosity about earthing. जैसे आम इंजीनियर्स होते, मैंने भी ज्वाइन किया। When I joined my company, I asked my senior what earthing is. The answer was connect any road with general mass of earth, that becomes earthing. That was only knowledge given by my senior. And the problem is that if you look at the Indian curriculum about engineering, जी, they don't have any specific chapter on earthing and safety. I felt satisfied. ठीक है, अर्थिंग मतलब एक रोड लेना है, उसको जमीन में डालना है, उसको कनेक्ट कर देना अपने सिस्टम से, एंड एवरीथिंग इज सेफ. देन आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर. ओके, I did BTech. In MTech, that was the main turning point of my life, because I started doing MTech in high voltage engineering. In high voltage engineering, the protection coordination, basic institution level, and role of short circuit current and the flow of that current comes. And in that factor, the important role is always played by the earthing and grounding. जी, After that, I got a chance to join DERC, Delhi Electricity Regulatory Commission. And I was working with the respected Anjali Chandra ma'am, and she was going to present on earthing in CBIP. I also wrote one paper and requested CBIP to accept my paper. And immediately after that, I got a call from Batra ji in CBIP. And he told me that my paper has been selected. I felt like anything. My first paper on earthing,
and I was very much excited to visit CBIP for the very first time, where I met my mentor, ओके PP Bhai Saab, who was instrumental in giving shape to my life. And I met Mr. Banerjee, HR Sridhar. They are the basically gem of that safety, and I got inspired immediately after that, and I started doing in the same direction, and finally I am so-called safety coach, and credit goes to all these mentors. ओके सो सर जैसे कि आप जाने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी कोच के नाम से, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरह से आज की डेट में आम आदमी एक ही गलतियों को दोहराए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। कोई ऐसी एक गलती जो आपको दिख रही है कि बहुत कॉमनली लोग रिपीट कर रहे हैं जानते हुए भी कि ये डेंजरस है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल सिंपल सा रूल है। ये एक हजार्डियस, इनविजिबल, कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स देता है। ओके And to avoid that thing, there is a very simple ABC rule. ABC means always be careful. ओके ABC रूल। Always be careful. When you look at any electrical gadgets, always assume that gadget's alive. Never take a chance with any gadgets you are using. I can give you a very good example. जी Are you using mobile phone? In the Yes. present era, if you look at any person from youth to the old person in your family, the most important gadgets is your स्मार्टफोन। phone, जी laptop, or desktop. When we talk about the mobile phone, to run that mobile phone, you need a charger. जी RPG, honestly speaking, have you ever looked at the code mentioned on your charger? नहीं। This is a problem. हम लाख रुपए का मोबाइल ले लेंगे. जी When it comes to charger, we never look at the safety. We never look at the IS 13252 part 1. We never look at square in square that ensures safety of yourself and your loved ones at your home. I always says, I am on a mission to make India free of electrical and fire accidents. जी But that mission, always, any mission starts with a very single step. And बिल्कुल every single step start with your very first step. And charity starts from your home. बिल्कुल सर। अगर आपने घर में सेफ्टी इंश्योर नहीं की और ये गैजेट्स जो यूज हो रहा है उसके अंदर आपने इंश्योर नहीं किया सेफ्टी को, क्या महत्वता है इस कोड की? क्या दर्शाते हैं ये कोड? जैसे आपने एक एग्जांपल दिया। अगर कोई चार्जर है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसके अंदर एक कोड होता है 13252 पार्ट 1। ओके वो ये बताता है कि मेरा ये चार्जर इस इंडियन स्टैंडर्ड कोड को कंप्लाई करता है। ठीक है। दैट इंश्योर इट्स सेल्फ सेफ्टी, कि हाँ एक चार्जर जो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास आया है उसमें वो सेफ्टी के सारे फीचर्स होंगे जो आपको चाहिए। ठीक है। देन देयर इज ए वन सिंबल स्क्वायर इन स्क्वायर दैट टॉक अबाउट द डबल इंसुलेशन, मींस इट इज प्रोवाइडेड विद डबल इंसुलेशन। अगर एक इंसुलेशन फेल होता दूसरा इंसुलेशन है इसमें। ओके that talk about the safety associated with that charger. This is a very first example. And second example, when you buy any gadgets, जी what's a problem with the Indian sector? एक extension code लेते हैं, उस पे multiple sockets. बहुत आम है कॉमन फैमिलीज में। Extension code is a temporary system, mind it. That is not a permanent solution. Never try to make that extension code as a permanent power supply for your gadgets. ओके इसमें भी रिस्क है। It has limited capacity to cater the load. वो 6 एम्पियर या 15 एम्पियर की आती है। हाँ जी। आपने उस पर 6 एम्पियर के 3 गैजेट लगा दिए। हाँ How can you ensure safety with that?
ओके, सो जो एक्सटेंडेड कॉर्ड्स होती हैं जिसके ऊपर हम लोग अपने चार्जर्स या बेसिकली एक मोस्टली ये चीज़ें स्टडी टेबल या डेस्कटॉप पे देखी जाती है क्योंकि वहाँ पे होता है प्रिंटर प्लग, सिस्टम प्लग एंड केबल्स। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि उसके अंदर प्रॉपर वायरिंग करा के एक स्विच बोर्ड? डेफिनेटली जी, आपको नेवर मेक इट परमानेंट। ओके, दिस तो इज वेरी फर्स्ट स्टेप। जी, चार्जर, एक्सटेंशन कोड, देन कम्स द एमसीबी। हाँ, अब हर घर में जाएंगे, एमसीबी लगी है। बिल्कुल। What happens? You ask your electrician to go and install MCB. वो मार्केट में जाता है, जिस रेटिंग की उसे मिली, उसने मांगी 16 की, उसने कहा 16 की नहीं है 20 की है, वो 20 की लेके आया। यू नेवर लुक एट दैट थिंग, उसने लगा दी, उसने बोला गारंटी है साहब लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमसीबी में भी कैटेगरी होती है, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप। ट्रिपिंग कर्व डिसाइड करते हैं कि कब आपका वो गैजेट, सेफ्टी गैजेट्स हेल्प करेगा वो प्रोटेक्शन के लिए। आइडियल एमसीबी अगर मैं पूछूं कि आइडियल एमसीबी एक घर के अगर हिसाब घर से? के हिसाब से मैं रिकमेंड करता हूँ बी टाइप एमसीबी होनी चाहिए ओके, फॉर ऑल योर डोमेस्टिक लोड्स। एंड कॉमर्शियल के लिए अलग? कॉमर्शियल एक्चुअली के यू लिए हैव टू सिलेक्ट विद विजडम, क्या आपका लोड है, कितना स्टार्टिंग करंट होगा और कितने टाइम में आपको ट्रिपिंग चाहिए। दैट इज डिजाइंड बेसिकली, इट इज नॉट लाइक दैट कि आप कोई भी रेटिंग का आपने एमसीबी लगा दिया। जी, देन कम्स आरसीडी, रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर। ओके, हम उसे लगाते नहीं है, वो 30 मिली एम्पेयर, दैट इंश्योर्स सेफ्टी। आपने किसी भी रीजन से गलती से किसी भी सॉकेट में हाथ लगाया, हाँ, that current starts flowing through your body, यस, and moment that current becomes more than 50-60 milliampere, you will die because fibrillation of heart start, जी, आपका हार्ट बंद हो जाता है काम करना। अब अवॉइड करना है आपको, आरसीडी आपको लगानी। अब आरसीडी लगानी है मैं नहीं बोलता हूँ, ये रेगुलेशन 32 सीए रेगुलेशन, जो रेगुलेशन सीए का 2023 में आया था, रेगुलेशन सीए सेफ्टी रेगुलेशन 2023 2023 इज द बाइबल। ओके, इट टॉक्स अबाउट ऑल द रेगुलेशंस एंड द वेरी फर्स्ट रेगुलेशन इन दैट सीरीज द रेगुलेशन 18, वो बोलता है कि अर्थिंग। आई मेंशन दैट आई डिड पीएचडी इन अर्थिंग। जी, अब अर्थिंग दो रीजन है। रेगुलेशन 18 बोलता है कि एक अर्थिंग आपके मीटर बोर्ड पे यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हाँ, फिर उसको यूज करना और उस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड से अर्थिंग को जोड़ना, इट इज ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर। आप वो नहीं करते, यूटिलिटी या तो प्रोवाइड नहीं कराती, अगर वो प्रोवाइड कराती तो कंज्यूमर उसे यूज नहीं करता। देन व्हेन देयर इज नो अर्थ, अनर्थ विल बी देयर। वेरी सिंपल। लेकिन इंडियन साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रिशियन ने बोला साहब भरोसा कर लो तो भरोसा कर लिया जाता है। लेकिन जो आपने आरसीडी टर्म बोली, आरसीडी बेसिकली हर घर में मेरे को लगना ही लगता कि आज की डेट में होगी। रेगुलेशन 44 बोलता है कि ये लगनी है, और यूटिलिटी मीटर तब तक आपको नहीं देती जब तक आरसीडी ना लगाओ। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आरसीडी लगती है मीटर जब आपको एलोकेट होता है, लेकिन आपकी वायरिंग में प्रॉब्लम है, वो ट्रिपिंग कर रही है। हाँ। आप वायरिंग को ठीक नहीं कराते, आप उसे बाईपास कर देते हैं। दिस इज द एरिया वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। आपको वो बाईपास नहीं करना, आपको उस प्रॉब्लम पे अटैक करना है, उसको रेक्टिफाई कराना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स, ऑल द इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स, तो इसके अंदर हम ये 3 पॉइंट्स को ही मेजर करेंगे या और भी कोई आपकी टिप्स हो? आपने कोई बिल्डिंग जिसमें आपको शिफ्ट होना है या आपने परचेज की, जी, 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसके। सबसे पहले रूटिंग ऑफ योर वायर। आपकी हर एक कंड्यूट की एक कैपेसिटी है, उसी में ही आपने सारी वायर नहीं डालनी। देयर शुड बी सम स्पेस फॉर द हीट डिसिपेशन। जब करंट फ्लो करेगा, हीट जनरेट होगी, तो हीट जनरेट उसको डिसिपेट कैसे करेंगे? सभी आपने वायर एक ही कंड्यूट में भर दी,
then proper segregation of circuits, जी then comes proper selection of MCB for that circuit, हाँ जी then comes earthing. आपने अर्थिंग देना है, जो मैंने रेगुलेशन 18 की बात करी, जो यूटिलिटी ने अर्थिंग आपको दी है उसको आपने यूज करना है अपने अर्थिंग टर्मिनल पे लाके. जो यूज नहीं करेंगे तो आप इंश्योर कैसे करेंगे सेफ्टी. देन कम्स वायर क्लास 2 FRLS, फायर रिडंडेंट लो स्मोक. ओके that clearly mentioned in NEC, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड 2023, कि आपको वही केबल यूज करनी है, वही वायर यूज करनी है, ताकि एक तो वो फायर रिडंडेंट है, और जब अगर फायर किसी रीजन से लगती है तो लो स्मोक. फायर में मैक्सिमम डेथ जो होती है स्मोकिंग की, सफोकेशन की वजह से होती है, घुट के मर जाने से. हाँ, तो वो स्मोक क्रिएट नहीं करती. वी हैव टू मेक पीपल अवेयर अबाउट ऑल दीज स्मॉल टर्म्स. देन वी हैव टू अवॉइड ओवरलोडिंग. जिस कैपेसिटी की वायर है उसी कैपेसिटी का लोड होना चाहिए. आपको ओवरलोडिंग नहीं करनी, आपको प्रॉपर क्लियरेंसेस देनी है. जी आपने एक हैवी लोड लगाया, हीटर लगा दिया, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके 3 फीट के डिस्टेंस पे आपको कंबस्टिबल मटेरियल रखने हैं उससे. ओके ये नहीं कि यहाँ हीटर लगा दिया उसके साथ में ही आपने कंबस्टिबल. फायर क्या है, अब देखिए जितने भी हर जगह जहाँ भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस पर ब्लेम क्या आता है, फायर लगी शॉर्ट सर्किट की. शॉर्ट सर्किट कैसे होता है स्टार्ट? शॉर्ट सर्किट में फायर में 3 कंपोनेंट है जी. आपकी हीट आती है जब करंट फ्लो होता है. हाँ शॉर्ट सर्किट हुआ तो हैवी करंट हीट आ गई. देन ऑक्सीजन वो ऑलरेडी अवेलेबल है. देन थर्ड मटेरियल इज द कंबस्टिबल मटेरियल इन दैट विसिनिटी. देन दैट इज कॉल्ड फायर ट्रायंगल. केमिस्ट्री पूरी हुई, हाँ आग स्टार्ट हुई. तो उसको अवॉइड करने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन दैट इंटरप्शन ऑफ करंट. जो हीट आ रही है उसको रोकना है. जी For that, you need proper earthing, proper selection of your MCB, and you should be wise in taking care of the protection system you have installed in your building. That जी. ensures the safety. किस तरह से कनेक्शन बैठता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी सर्किट और फायर ब्रिगेड्स का? देखिए, जहाँ पर NOC और फायर का रिलेशन है, I don't have any idea about that thing, and I am not in a position to give any statement on that, but I can tell you how to avoid AC fire with simple ABC rule. जी Again, ABC rule. एसी फटने से कैसे रोकें? हाँ, rule A means avoid, B means be alert, C means condition monitoring and take care of that coolant. अब avoidance क्या avoid करना है आपको? avoid करना है आपको overloading, जो भी मैंने आपसे बताया. वो स्पेसिफिक वायर लगानी है जो एसी का, जिस टन का एसी है उसको लोड को ले पाए. ओके देन you should not connect your AC with the same circuit where already some other circuits are connected. उस पर ओवरलोड नहीं करना. जी. Then comes the connection of multiple points on the same socket. वहां पे आपको AC रन नहीं कराने. ठीक है. Then continuous running, वो चल रहा है, आप बिल्कुल देख ही नहीं रहे. You have to switch off your AC when you don't need it. ओके And अब जितने भी AC है, it comes with outer unit. हाँ जी. You have to provide shed with proper ventilation. जो मेरी बुक है, मिशन इलेक्ट्रिकल, जीरो इलेक्ट्रिकल एंड फायर एक्सीडेंट्स, इस बुक में मैंने वो पोस्टर बना के दिखाया है ABC रूल का. ओके कि कैसे हम फायर जो AC में लगती है ABC रूल में, प्रॉपर आपको वेंटिलेशन देना आउटर यूनिट में. जी. आपको रूम खोल के नहीं रखना ताकि आपकी कूलिंग बाहर ना जाए. आपको रेगुलरली उसकी कंडीशन मॉनिटरिंग करनी है. आपको हर 15 दिन में फिल्टर सही करना है और हर 3 महीने में सर्विस करानी है. प्रॉपर MCB लगानी है आपको. जी. अलर्ट किस चीज में रहना है आपको अबनॉर्मल साउंड दिखे, हीटिंग स्मेल दिखे, और रूम खुला है, कॉन्टिन्यूअस आपका यूनिट चल रहा है, यू हैव टू स्टॉप ऑल दिस थिंग एंड बी अलर्ट.
when government has given guideline, run your AC at 24 to 26 degree. Kindly obey that thing. That will protect you as well as reduce your electricity bill. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए तो काफी घरों में बोला जाता है कि एसी को 24 से नीचे ना करें। अब इसके लिए भी एक सिंपल सा रूल है। जी। That rule is called RR. RR. ARE-R. Okay. Avoid use of electricity when it is not required. If you can't reduce, you can't avoid, reduce it at least. हाँ। If you can't reduce, at least go with the energy efficient gadgets. कि जो लोड झेल सके। नहीं, energy efficient means that can give you less power consumption with the same requirement you have. बट वो तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आ ही रहे हैं आज की डेट में कि ये बिजली भी ज्यादा नहीं लेगा। लोकल नहीं लेना ना आपको, एनर्जी एफिशिएंट स्टार रेटिंग वाले लेने हैं। जी। देन फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, renewable energy. That is the future. You have to use that at your home, because now the consumer is not consumer, it has become prosumer. पहले क्या था, कंज्यूमर था, उसको इलेक्ट्रिसिटी आती थी, वो खुद भी प्रोड्यूस कर रहा है। That's why the consumer is prosumer right now. जी, सोलर पैनल्स लग जाते हैं अब टेरेस पे। जी। और हर इंसान, अब तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी निकाल दी ना कि आप लगाओ तो हम आपको पैसा देंगे कि आप जनरेट करो। जी। You have to help your nation. तो वही मेरा अगला सवाल है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी को इनहैंस कर रही है या इम्पैक्ट कर रही है। जिस तरह से आज की डेट में गैजेट्स जो हैं वो बहुत एडवांस हो गए हैं, तो उस पे आपकी क्या राय है? जैसे एलेक्सा आ गई, हे एलेक्सा टर्न ऑफ द फैन, एलेक्सा टर्न ऑन द गीजर, उस पे आपका क्या कंसेप्ट है? Alexa can help you to operate your gadgets. जी। But it won't help you to protect your gadgets at all. For that, you have to be alert, you have to be wise, you have to be vigilant in selecting the protective system you have selected for your houses, for your building, for your organization. जी। You can use that advancement in the technology for the protection system you are going to install. बिल्कुल। For example, एडवांसमेंट की बात करते हैं। पहले जिस प्रोटेक्शन सिस्टम को ऑपरेट करने में, डिस्कनेक्ट करने में मुझे कुछ समय लगता था, नाउ वी हैव रिड्यूस्ड दैट टाइम। दैट इज द यूज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। यू कैन यूज दैट टेक्नोलॉजी टू check, to monitor the gadgets you are using. जी. And based on the report you get from the condition monitoring devices, you have to take action. बिल्कुल। If you don't take action, just monitoring, it is of no use. Finally, you have to take action. मतलब अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। हमें जागना है। जी। This matter of my nation, I am on a mission to make India free of electrical and fire accidents. I feel pain every day when you just get up to find a news on social media, electrocution, fire, and such failure. It gives pain. And we have to work together to avoid all these things. बिल्कुल सर। तो इसी से मेरा एक सवाल है कि आज की डेट में एलेक्सा एक एग्जाम्पल है, लेकिन AI जो है वो इनबिल्ट गैजेट्स में आने लग गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि AC जो है वो आज की डेट में ऐसे हो गए हैं कि अगर आप बंद करके चले गए तो वो ऑटो ऑफ का फीचर आ गया है कि आप जाओ तो वो ऑटो ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत से गैजेट एडवांस होते जा रहे हैं, तो उनके अंदर भी क्या मतलब इतने रिस्क है? मैं आलसियों को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या टेक्नोलॉजी भी हेल्प कर रही है इंडिविजुअल्स की कि अगर कोई बाय चांस मिस हो जाए, मैं कमरे से निकला, मैं MCB डाउन करना भूल गया, मैंने आपको मेंशन किया था, दैट इज द पार्ट ऑफ बी इन माय ABC रूल। हाँ, you should be vigilant when you are not using AC, you should switch it off. And for that thing, if you feel you can't do, you can take help of the technologies available that can sense there is nobody in the room. हाँ, that can help. Exactly my point कि बढ़ते जमाने में आज की डेट में सारे गैजेट्स ही इतनी टेक्नोलॉजी कर चुके हैं कि अगर but finally selection of protection device हमारी आपकी है, करना खुद है। हाँ, आपको एक्यूरेट
सेलेक्ट करना है डिवाइस जो जरूरत पड़ने पे आपको बचा पाए. You need RCD to save your life. You need proper MCB to save your life. You need class 2 wire, FRLS cable. You need earthing and grounding to protect yourself and yourself. And you have to use the quality product. You have to avoid outdated product that are beyond repair. तो सर मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आपके 150 प्लस आर्टिकल्स जो हैं वो ऑनलाइन साइट्स पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पब्लिश्ड हैं. Right. एंड हाल ही में आपने अभी एक बुक निकाली है, मिशन जीरो एंड इलेक्ट्रिकल एंड फायर एक्सीडेंट्स. तो उस बुक के पीछे, उस बुक के ऊपर काम करते हुए आपके पास बैक थॉट क्या था, मतलब क्या सोच के आपने वो बुक लिखी? Arpit, this is very important and valid question you are asking. You look at the figure of electrocution fire happening every day in India. There is one agency that is called NCRB, National Crime Record Bureau. जी. This is the only agency in India that records all these accidents we are talking about. You can look at the figures for last 5 years. Every recorded, I am talking about the recorded figure. That is important. 4,30,000 deaths last year. जी. And 3% contributed by that electrocution, lightning and fire because of short circuit. That means 15,000 deaths in a year. जी. It is not a small number. बिल्कुल. It's a big number. And I'm on a mission to save that 15,000 precious life. It's matter of not only that 15,000 life. It's a matter of life associated with this precious life. It shatters the dream of many who are associated with this disease. It shatters hope. It results in the loss of assets for my nation. बिल्कुल. It gives bad name to my country. And I am on a mission. I am on a mission to make India free of electrical accidents. And this book, Mission Zero Electrical and Fire Accidents, a practical guide on electrical safety, gives you all this information starting from your home to your industry, from your EV charger to BESS. It talks about electrical safety, region of electrical accidents, legal framework, different IS codes. When you are working with cables, when you are working in substation, when you are working in EV charging station, when accident happens, how to save that person. What are the action to be taken, and when some accident happens, how to report that accident. And finally, what are the takeaway of my book? And lastly, it depicts 7 important chapters, 7 important posters that gives illustrated diagrammatic explanation of all the regulations and precautions to be taken to save yourself, to save your loved ones at home, and to make this mission to make India free of electrical and fire accidents, Mission Zero Electrical and Fire Accidents, successful. And for that I need help and support of all citizens, all persons be the part of this mission and make this mission successful. This is the ultimate aim, because I want India to be a safe country. I don't want to die empty like others. I want to give back to the society before I die. I want to contribute for my country. And I feel if I can save one life in my life, I will feel satisfied. That is the ultimate aim of my life. बहुत खूब सर, बहुत खूब. और इसी से मेरा अगला सवाल ये जुड़ता है कि हम अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं लोगों को जगाने का, लोगों को बताने का, लेकिन मैं वहीं आता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था कि आम आदमी जो आज का सिटीजन है वो इतना अवेयर नहीं है कि उसको ये सारी नॉलेज हो. वो अपने इलेक्ट्रीशियंस पे भरोसा कर रहे हैं और इलेक्ट्रीशियंस अपनी फील्ड में बहुत आगे हैं, लेकिन एकेडमिक्स में अगर हम बात करें तो वो भी इतने हाईली अप्रोचेबल नहीं है. तो आप
इस पूरे सिनेरियो में इंजीनियर्स जो ये सब चीजें डिजाइन कर रहे हैं, जो आज के करंट इंजीनियर्स चल रहे हैं, उनको क्या एडवाइस दोगे कि वो ही कुछ ऐसा अल्टीमेट गोल सेट करे जिससे अगर बाय चांस कोई बहकावे में इलेक्ट्रिशियन के भरोसे में भी आ रहा है तो उसको इतनी गहरी चोट ना पहुंचे? इंजीनियर्स के लिए एक एडवाइस। अर्पित, मैंने बताया था जब मैंने करियर स्टार्ट किया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नो वन टू गाइड मी. इन द प्रेजेंट era, YouTube is with you. You are connected, well connected with social media. Various sources of knowledge are available. And my advice, sincere advice to all youth engineers, kindly never neglect safety, because it never gives second chance. Once it happens, it gives you only pain. जी. It gives you only bad memories. Always be careful and apply 3D rules in your life. Decide what you want to do in your life. Take determination and finally just go and do it. And be the part of mission to make India a safe country to live in. Give full importance to the safety aspects as you are giving to AI, ML and others latest technologies we are talking about. ओके, सो जैसे आपने बताया मिशन जीरो का मेन मोटिव, मतलब मिशन जीरो ही क्यों नाम रखा गया, इसका कोई साइकोलॉजी है, बैक साइकोलॉजी? मतलब मिशन जीरो इलेक्ट्रिकल फायर्स कि हमें इसको बिल्कुल जीरो पे लाना है, ये बात मैं समझ गया, लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या रख सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा क्या करे जिससे इसकी जो है अवेयरनेस बढ़े. Arpit, I have already explained. There are all rules, regulation already in place. CA safety regulation, NEC 2023, IS 3043, IC 62305, and IS 1646. And that latest National Building Construction Code 2020-26. All these regulations, rules already in place. They need to implement the rules and regulation already in place. They need to train the person. They need to educate the person. They need to be alert. They need to be aware. They need to take action to make this India a safe country to live in. जी बिल्कुल सर, लेकिन मेरा सवाल अवेयरनेस पे ही है कि हमारे सिटीजन्स इतने हमारा पूरा इंडिया जो है वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि वो सारे लॉ पढ़ सके. हर जगह अगर आपको गांव में ये बात बतानी है तो हम उनको अपने कोड्स एंड कंडक्ट्स नहीं बता सकते. उसके लिए एक कैंपेन्स रन करती है सरकार, अवेयरनेस कैंपेन होती है. जो फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत आया, वो भी हमारे अंदर का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट आपके आसपास जो है वो सफाई होनी चाहिए. यू आर रिस्पॉन्सिबल, बट कैंपेन एंड अवेयरनेस किस तरह से इसकी फैलाई जाए? अब वो समय आ गया है कि हमें लोगों को जगाना है. जी. चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम योर होम. अभी मैं नाम लेना चाहूंगा दिल्ली हेरिटेज स्कूल, दिल्ली रोहिणी के अंदर. दे हैव सेट अप ए गुड एग्जाम्पल. लाइक they have started giving classes on electrical safety in their curriculum. Okay. You can go and see my YouTube channel. Even Vibha Gupta, the principal of that school, was taking that safety class. You just think about the Sanjay Ahuja ji, the head of that school. He's energy safety enthusiast. We have to be like this exemplary person जो आगे बढ़ के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे. इसको करिकुलम का पार्ट बनाना है, बच्चों को इसके बारे में इसकी अवेयरनेस देनी है. बिकॉज इफ यू डोंट इनकलकेट दैट थिंग इन द चाइल्डहुड, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट थिंग इन द फ्यूचर. बिल्कुल, भविष्य ही हमारा यूथ है आज की डेट में, तो कि जो भी हम यूथ के माइंड में आप जो बच्चे को सिखाते हैं वो सीखता है. अगर आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की भी नॉलेज दें. आई हैव सीन वन वीडियोस ऑफ जापानीज पर्सन्स, दे वर गिविंग दैट एजुकेशन टू इवन इन्फेंट, ओके, toddler. They understand what to do, what not to do.
the same thing can be initiated in India. And for youth engineers, I have written that book. That is a practical guide. There is a very good saying: if you can't read the complete book, read one page and implement in your life. If you can't read entire regulations, you read the crux of regulations I have mentioned in the book. Okay. Because it's a matter of mindset. And it is well said that गिरते हैं ख्याल तो गिर जाता है आदमी. क्या बात है. गिरते हैं ख्याल तो गिर जाता है आदमी, और जिसने इसे संभाला वही संभल गया. तो अगला सवाल मेरा आपसे कि रिन्यूएबल एनर्जी किस तरह से हमारे देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट वेपन और वे है कि हम किस तरह से डेवलपमेंट को जल्दी से प्राप्त कर पाए, टोटली डेवलप्ड कंट्री. Arpit, in the present scenario, that is very important question you are asking. The story starts with the COP26. जी. Glasgow, where Honorable PM Saab visited, and immediately after that, 5 Panchamrit statements were given. That talks about reduction of carbon emission. That talk about dependency of electrical sector on renewables, and we have set up a targets of 500 gigawatt by 2030. And it is pertinent to mention about the total installed capacity of India first. In the present time, if you look at the latest figure, the capacity, total installed capacity is 530 gigawatt. जी. And we have to achieve 50% by renewable by 2030. And we have already achieved that. It's a matter of proud. बिल्कुल. कि हमने जो 30 में करना था, हमने वो अभी कर दिया, 26 में ही कर दिया. हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी का 50%, नाउ 51% कम फ्रॉम RES. RES का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. जी. एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मतलब है स्मॉल हाइड्रो, आपका सोलर सिस्टम, आपका बायो पावर और विंड पावर. और सोलर का कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी अराउंड 30%. इट्स अ बिग नंबर. बिल्कुल. इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. बट व्हेन यू टॉक अबाउट दैट डेवलपमेंट, ट्रांजिशन डेवलपमेंट, आप 1947 की बात करती हैं, तब हमारी पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन थी 16 यूनिट. जी. और आज है 1450, 1450, almost 100 times more. बिल्कुल. That means we have started using electricity more. But at that point of time, total installed capacity of India was 1.3 gigawatt. Now it has become 530. जी. It talks about the development in the power sector, but it comes with challenges of safety also. बिल्कुल. More you use electricity, you are more prone to electrical accidents if you don't use that electricity with due care. बिल्कुल. सेफ्टी. जी. तो this is the important thing. एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे हमने 50% तो अचीव कर ही लिया, जैसे आपने बताया, तो आने वाले, आपके हिसाब से आने वाले कितने सालों में जो है वो हम टोटल रिन्यूएबल एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे? मतलब जैसे आजकल हर घर में तो सोलर पैनल नहीं है, पर क्या लगता है आपके हिसाब से कब तक ऐसा होगा कि हर टेरेस पे आपको सोलर पैनल दिखने को मिलेंगे? That is possible, but it comes with challenges, I can tell you, because that is not a permanent power. That is Exactly. intermittency is the big challenge with that. You can't depend on renewable 100% with the present technologies available. Intermittency is a problem. आपके पास बिजली 4 से 6, आपको other sources भी चाहिए. You need other sources to give power for others are. जी. तो 100% उस पे जाएंगे, I don't think that is going to happen, but the percentage will definitely increase.
तो सर मैं आशा करता हूं कि ये आपकी किताब हर घर तक पहुंचे और हमारे देश का हर एक नागरिक इस बात को अपने ध्यान में रखे कि अब ये सारे हादसे कंट्रोल करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान है। तो बी अवेयर, आपको ये पॉडकास्ट हेल्प करेगा कि किस तरह से आपको अपने घर वालों को और अपने देश को बचाना है इन एक्सीडेंट से, फायर एक्सीडेंट से। एंड डू रीड मिशन जीरो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय गेस्ट सर। Thanks a lot, Arpit.